Hello everyone, welcome back again. Now student, in this session we will do another part of your chapter, that is your chapter number 9, halves and quarter. So all the other pages is already discussed in the previous video. So if you want to check it, then check your description box. Okay, links are there. So now today we will start our session from the page number 101. So all of you please open your book and open your page number 101, and that is your practice time. So let's start from the question number 1. What part of whole is colored? इसमें से कितना पार्ट आपका कलर्ड है? राइट बिलो ईच शेप, आपको हर शेप के नीचे बताना है कि इसमें कितना पोर्शन आपका कलर्ड है. सो एज यू कैन सी हियर दिस रेक्टेंगल इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स. क्लियर? सो इट मीन्स योर डिनोमिनेटर इज 2 एंड आउट ऑफ 2 1 पार्ट इज शेडेड. सो योर आंसर इज 1/2. हाफ ऑफ द रेक्टेंगल इज शेडेड. Next, this rectangle is divided into 4 equal parts. So it means your denominator is 4 and out of 4, 2 parts are shaded. So your fraction is 2/4. So here your answer is 1/2 and 2/4. Out of 4, 2 parts are shaded. Out of 2, 1 part is shaded. Now next question is color that part of the shape which is written below. So here your fraction is given here. Okay, your fraction is given here and you have to colored your each and every shape according to the given fraction. आपको fraction के according उस part को color करना है. So first one is half. It means आपको half portion color करना है. So हर 2 portion में से 1 part आपको color करना है. So out of these 2 I am going to shade this part and out of these 2 I am going to shade this part. Okay, and as you can see here out of 4 2 parts are shaded, यानी कि 4 का हाफ होता है 2. so 4 के हाफ पार्ट शेड हो चुके हैं. so that is your 1/2. आपने 4 में से 2 पार्ट शेड कर दीजिए. आपने 4 में से 2 पार्ट शेड कर दिए हैं. आपने 4 में से 2 पार्ट्स अगर शेड कर दिए, आपने 4 में से 2 पार्ट्स अगर शेड कर दिए हैं तो 4 का हाफ होता है 2. So it means half parts are shaded. Clear? And students, for shading use only pencil or crayons color. Clear? Next is again half. So first just count how many blocks are here. 1 2 3 4 5 6 and half of the 6 is 3. यानी कि आपको 3 parts यहाँ पे shade करने हैं. So 1 2 3 shade 3 parts. आप कोई से भी parts shade कर सकते हैं, but you have to color only 3 parts. Now next is 3/4. So first just divide this circle into 4 equal parts. Now color 3 portions. So 1 2 3. It means in this circle you have to color this part, that is the 3/4. 4 3 part. Clear? Now next shape is this one. Okay, and it's a hexagon and here you have to shade only 3 parts. So that is 1 2 3. Out of 4 just shade any 3 portions. Next is 1/4. So out of 4 you have to shade 1 part. So that is your 1/4 portion. Okay, you can color any portion of it. Next is 3/4, but this time you have blank box. So first just divide that box into 4 equal parts. So I am going to divide it like that, and after that just shade 3 parts because your numerator is 3. So shade any 3 parts. Okay, so with the help of this video just complete your question number 1 and 2. Okay, now come to the next shape. Now come to the next question, and that is question C. कट इन हाफ्स. आपको यहाँ पे 3 पिक्चर्स गिवन हैं. आपको इनको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है. क्लियर? सो फर्स्ट वन इज इट्स अ बर्ड, एंड हाउ यू कैन डिवाइड इट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स लाइक दैट. क्लियर? सो विद द हेल्प ऑफ द पेंसिल ड्रॉ वन लाइन लाइक दैट. ओके, योर लेफ्ट पार्ट शुड बी इक्वल टू राइट पार्ट. नेक्स्ट इज इट्स अ स्टार शेप. सो यू कैन डिवाइड इट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स लाइक दैट, एंड यू कैन डिवाइड इट लाइक दैट ऑल्सो. Clear? So here we have lots of ways to divide it into 2 equal parts. You can divide it like that also. Okay, and that is also 2 equal parts. So it's totally up to you how you can divide it. Okay, choose any one way and do it in your book. And next is the pumpkin. So if you want to divide it into 2 equal parts, just divide it like that. Okay, and remember that use your pencil only. Okay,
Now come to the next question, question D. Color half the number of shapes. Okay, यहाँ पर आपको half portion को color करना है. As you can see here, here total we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 rectangles and out of 8, 4 are shaded. So 8 का half shaded है. Same आपको another shapes के लिए भी करना है. So here you have total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 circles. So 18 का half होता है आपका 9. 2 9s are 18. So now just color any 9 circles. Okay, कोई से भी 9 circles को आप shade कर दीजिए. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Clear? Next is, so here you have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 flowers. So just color any 5 flowers. Okay, half of the 10 is 5. So I am going to color these flowers. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So pause the video and do it in your book. Next is color 1/4 of each shape. It means आपको हर 4 में से 1 part को shade करना है. So here you have 4 shapes. So color only 1. Clear? Here you have 8 shapes. So what is 1/4 of 8? 1/4 of 8 means 1/4 into 8. 4 2s are 8 and 2 1s are 2. It means आपको यहाँ पे 2 petals को shade करना है. So here I am going to shade these 2 petals. Okay. एंड आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं 4 में से 1 करना. इट मीन्स इन 4 में से कोई से भी एक कर दीजिए, इन 4 में से कोई से भी एक कर दीजिए, एंड इन 4 में से कोई एक कर दीजिए या इन 4 में से कोई एक कर दीजिए. किसी भी कंडीशन में आप चेक करें तो आंसर हमेशा 2 ही होगा. क्लियर? नेक्स्ट अगेन हियर यू हैव 2 cuboids. सो जस्ट शेड एनी वन, दैट इज 1/4. ओके, सो come to the next question, and that is your question number F. Match the colored part as shown. Okay, so here you have 4 equal parts and out of 4 2 parts are shaded. Clear? It means half portion यहाँ पे shaded है. So correct answer is half, and half को हम कैसे लिखते हैं? 1/2. Next is 1/4. 4 में से एक part shaded है. So 1/4 को हम क्या कहते हैं? Quarter. So here is your answer, quarter, and that is the fractional representation. Okay, next is here you have 4 parts and all 4 parts are shaded. It means it's whole, and how you can represent it? 4/4, and you can write it 1 also. 4/4, 4 1s are 4, so you can write it 1 also. Okay, next is 3/4. Out of 4 3 parts are shaded, so that is your 3/4. Okay, 3/4 आपके यहाँ पे 3 quarters है, 1 quarter, 2 quarter, 3 quarter. Okay, so 3/4 you can say that 3 quarters also, and how you will represent it? Here is your answer, 3/4. So students, one by one pause your video and do it in your notebook and do it in your book. Okay, you have to do it in your book only. आपको अपनी बुक में ही करना है each and every question. Now next is part G. Make the other half. So here you have half of the portion and you have to draw another half. Okay, so first one is there is one flower, pink flower. Okay, so same आप इसको next portion को, so same portion आप इसकी दूसरी साइड, so same portion आप इसकी दूसरी साइड में भी ड्रॉ करेंगे. ओके, और इसको आपको ऐसे ड्रॉ करना है कि दोनों पोर्शन इक्वल लगे. क्लियर? एंड आफ्टर दैट कलर इट. नेक्स्ट इट्स योर बटरफ्लाई शेप. ये आपकी बटरफ्लाई शेप है. क्लियर? सो सेम आप लेफ्ट हैंड साइड में जो भी इमेज बनी है उसको ड्रॉ कर देंगे राइट हैंड साइड में. क्लियर? एंड उसके अकॉर्डिंग ही आप उसको कलर भी करेंगे. क्लियर? नेक्स्ट इज अ इंसेक्ट. ओके, सो सेम जो पोर्शन आपको दूसरी शेप में दिख रहा है आप उसको एज इट इज़ ड्रॉ करेंगे एंड फिर उसको सेम कलर के संग कलर करेंगे. क्लियर? So again it's your homework, you have to do it in your book only. Next is this is a quarter of a picture. ये एक पिक्चर का सिर्फ क्वार्टर पार्ट है जो आपको यहाँ पे शो हो रहा है. कैन यू कंप्लीट इट? क्या आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं? येस वी कैन कंप्लीट इट. हाउ मैनी मोर क्वार्टर्स विल यू ड्रॉ टू कंप्लीट इट? सो हेयर ओनली 1 quarter is given here. So for complete this picture we want to draw 3 more quarters. सो आंसर इज 3. इस पिक्चर को कंप्लीट करने के लिए हमें 3 और क्वार्टर्स ड्रॉ करने होंगे. सो आंसर इज 3.
and just try to complete it. Okay, so first just complete that circle. Okay, it's your sun. Okay, and after that just draw same number of rays all three sides. Clear? This one also you have to do it in your book, and you can color it also just like other pictures. Now next is half and quarter of a meter. Okay, half and quarter of a meter, it means एक मीटर का हाफ कितना होता है एंड क्वार्टर कितना होता है. सो स्टूडेंट्स यू ऑलरेडी नो दैट 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. डोंट फॉरगेट दैट 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं. यूजिंग योर मीटर स्केल कट अ स्ट्रिंग ऑफ 1 मीटर. आपको एक मीटर स्केल को यूज़ करना है और फिर 1 मीटर की स्ट्रिंग, 1 मीटर की रस्सी को आपको कट करना है. On this string, mark a length half meter, 1/4 meter and 3/4 meter. So what you have to do, just take your string, just take your string. Okay, after that fold it. आप उसको fold कर दीजिए तो वो string आपकी हाफ हो जाएगी. क्लियर? तो जहाँ जिस पोर्शन पे फोल्ड हो रही है उस पर आप एक मार्क करेंगे. क्लियर? सपोज वो इस पोर्शन पे फोल्ड हो रही है, सो जस्ट मार्क इट हियर. ओके, सो ये आपका हो जाएगा हाफ. ओके, 1 मीटर का हाफ. नाउ अगेन जस्ट फोल्ड योर स्ट्रिंग. हाफ के बाद आप इसको दोबारा से फोल्ड कीजिए तो आपकी स्ट्रिंग और छोटी हो जाएगी. क्लियर? अब जहाँ पर वो फोल्ड हो रही है उसको मार्क कर दीजिए. सपोज आपकी स्ट्रिंग यहाँ पे फोल्ड हो रही है, सो आपको यहाँ पे 2 मार्क मिलेंगे. क्लियर? सो इट्स योर 1/4, इट्स योर हाफ एंड इट्स योर 3/4. एंड हाफ को आप 2/4 भी कह सकते हैं. क्लियर? सो आपकी स्ट्रिंग में मार्क्स हो जाएंगे. जब आप इसको हाफ फोल्ड करेंगे सो आपको हाफ पोर्शन मिलेगा, दैट इज़ योर 1/2. जब इसको हाफ को भी आप दोबारा फोल्ड करेंगे स्ट्रिंग को तो आपको 2 और मार्क मिलेंगे. सो इट्स योर 1/4. ओके, टोटल 4 पार्ट्स का 1 पार्ट, दैट इज़ योर हाफ. और इसको आप 2/4 भी कह सकते हैं. 4 के 2 पार्ट्स एंड अनदर वन इज 3/4, 4 के 3 पार्ट्स एंड इट्स योर कंप्लीट वन. क्लियर? Now next is using the string, draw a line of length half meter on the floor. Now use your string. Okay, आप अपनी string को यूज़ करेंगे, that is your 1/4. So इतनी लंबी आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे अपनी फ्लोर पे. ओके, हाउ मैनी सेंटीमीटर लॉन्ग इज द लाइन. ये लाइन कितनी सेंटीमीटर होगी आप इसको मेजर कीजिए. नाउ मीटर स्केल से आप इसको मेजर करके चेक कीजिए. क्लियर? So now you have to find out this what is the half meter, what is 1/4 meter and what is 3/4 meter. Okay, so आपके पास 100 मीटर की स्ट्रिंग है. क्लियर? 100 मीटर का जब आप हाफ करेंगे सो वो होता है आपका 50 मीटर. क्लियर? जब उसका 1/4 करेंगे यानी कि हाफ का भी हाफ तो वो होगा 25 मीटर. क्लियर? एंड 3/4 जब आप करेंगे 100 का सो उसमें आपके होंगे 1/4 जैसे 3 पार्ट्स यानी कि 25 + 25 + 25 एंड दैट इज इक्वल टू 75. Clear? And you can understand it like that also. How many centimeter long is the line? So it's your 50 centimeter. 100 का हाफ होता है 50 centimeter. This line is 50 centimeter long because 1 meter is equals to 100 centimeter. Okay, so 1 meter is 100 centimeter. So half meter is 100 का half and that is 50. Clear? Now you have to find out this 1/4 meter equals to, that is 25 centimeter. Why? 1/4 of 100. So 4 1s are 4 and 4 25s are 100. जब आप 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 25. सो हेयर इज़ योर आंसर 25. सो 1/4 होगा आपका 25 मीटर. 3/4 इज 25 सेंटीमीटर. नेक्स्ट इज 3/4 मीटर इज इक्वल्स टू 75 सेंटीमीटर. 3/4 मीटर. ओके, सो 3/4 ऑफ 1 मीटर इज इक्वल्स टू 4 1s are 4, 4 25s are 100 and 25 3s are 75. So answer is 75 centimeter. Clear? Student, that is the answer of your question. Okay. So pause the video and write that portion in your notebook. आपको अपनी notebook में करना है. So first in your notebook you have to write your page number 104. Okay, आप अपनी notebook में लिखेंगे page number 104. Okay, and उसके बाद अपने answer को आप notebook में लिखेंगे. Clear? That is your answer of your page number 104. Now come to the next topic and that is sharing milk. Okay, so अब हम यहाँ पर स्टूडेंट्स से पहले हमने डिस्कस किया आप मीटर सेंटीमीटर को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हाफ 1/4 और 3/4 में. अब हम लीटर के बारे में बात करेंगे कि हम किसी लिक्विड को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हाफ में, 1/4 में या 3/4 में. ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट. दिस बॉटल इज़ फुल ऑफ मिल्क एंड इट होल्ड्स 1 लीटर. ये बॉटल जो है आपकी ये दूध से भरी हुई है और इसमें आता है 1 लीटर ऑफ मिल्क.
This milk is put into 4 bottles so that each bottle has 1/4 लीटर ऑफ मिल्क। अब इसमें से 1 लीटर मिल्क में से थोड़ा थोड़ा मिल्क चारों बॉटल में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और इसको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया है कि चारों बॉटल में इक्वल पोर्शन है। सो ये भी आपका है 1/4 1/4 1/4 और 1/4। ओके, बॉटल के मिल्क को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके हर बॉटल में 1 पार्ट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। नाउ शेड द बॉटल टू शो द लेवल ऑफ मिल्क इन ईच। सो अब आपको क्या करना है, इस बॉटल को शेड करना है ये बताने के लिए कि उसमें कितना मिल्क है। सो हर बॉटल को आप इक्वल पोर्शन में शेड कर देंगे। ओके, जस्ट शेड दिस पोर्शन एंड डू इट विद द हेल्प ऑफ द पेंसिल। ओके, आप पेंसिल के यूज से करेंगे। नेक्स्ट इज हाउ मैनी मिलीलीटर्स ऑफ मिल्क डज ईच बॉटल हैव। हर बॉटल में कितना मिल्क है। सो हेयर इज़ योर आंसर। ओके, अगेन आप जो आपने नोटबुक में आंसर्स लिखे हैं उसके नीचे ही आप इस आंसर को लिखेंगे और इसके करेक्ट आंसर को बुक में भी मेंशन करेंगे। सो ईच बॉटल हैज़ 1000, यहाँ पे आपका आएगा 1000/4। ओके, आपके पास 1 लीटर मिल्क था, 1 लीटर में होते हैं 1000 ml। ओके, सो आप लिखेंगे 1000/4 एंड जब आप 1000 को 4 से डिवाइड करेंगे सो आपका आएगा 250 ml ऑफ मिल्क। हेयर इट्स योर 1000, ये आपका 1000 यहाँ पे। ओके, सो आपका आंसर आएगा 250 ml ऑफ मिल्क। कैसे आएगा हम चेक कर लेते हैं। 4 2s are 8, 2 is remainder, now 0, 4 5s are 20 and now 0 is here। so 1 प्लेस वैल्यू आपकी मिसिंग है, 1 प्लेस वैल्यू आपकी बच रही है। सो जस्ट write here 0. So your answer is 250 ml of milk. It means in each bottle milk is 250 ml. Clear? Your answer is 250 ml. Okay. Now next is Shan poured 1 liter of milk into 2 bottles so that the first bottle holds 3/4 and the other hold 1/4 liter. अब शान ने क्या किया, शान ने उसको 2 बॉटल्स में फिल किया। ओके, 1 लीटर की बोतल को 2 बॉटल्स में फिल किया, बट पहले में उसने डाला 3/4 एंड दूसरे में डाला उसने 1/4। ओके, नाउ शेड द लेवल ऑफ मिल्क इन ईच बॉटल। सो एक में 3/4 है, क्लियर, एक में सिर्फ 1/4 है। ओके, सो आप 3/4 को शेड करेंगे और वो 1/4 से 3 टाइम्स ज़्यादा होना चाहिए। क्लियर, आप ऐसे उसको शेड करेंगे कि जितना आपने 1/4 यहाँ पे शेड किया है उसका 3 गुना 3 टाइम्स ज़्यादा आप दूसरी बॉटल को शेड करेंगे जिसमें 3/4 है। ओके, नेक्स्ट इज हाउ मैनी मिलीलीटर ऑफ मिल्क डज ईच बॉटल होल्ड्स। आप कितना मिल्क किस बॉटल में है। क्लियर, सो इसमें आपका है 3/4 1 लीटर का। क्लियर, इसमें है 1/4 1 लीटर का। क्लियर, सो हेयर इज योर आंसर। मिल्क इन द फर्स्ट बॉटल एंड दैट इज 3/4 ऑफ 1000। सो जब आप 1000 को 4 से डिवाइड करेंगे सो आपका आएगा 250। कैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। नाउ 3 to 50s are ओके, 250 को हम जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे सो आपका आएगा 750। ओके, सो योर आंसर इज 750 ml। इन फर्स्ट बॉटल देयर इज 750 ml ऑफ मिल्क। नेक्स्ट इज मिल्क इन सेकेंड आएगा यहाँ पे। ओके, इट्स अ मिसप्रिंट। ओके, मिल्क इन सेकेंड बॉटल में कितना मिल्क होगा 1/4 ऑफ 1000 और 1000 का 1/4 होता है 250। जब आप 1000 को डिवाइड करेंगे 4 से तो आपका आएगा 250। इट मीन्स इन सेकेंड बॉटल मिल्क इज 250 ml। Now come to the next page and that is your page number 105. So all of you please open your page number 105 and our topic is balance the weight. हम weight को कैसे बैलेंस करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आप सभी ने कहीं ना कहीं इस टाइप की वेट मशीन्स को तो देखा ही होगा। मोस्टली हमारे वेजिटेबल सेलर जो होते हैं वो इसे यूज़ करते हैं। ओके, सो ये वर्क कैसे करती है, आपके इसमें बैलेंस होता है। जितना आपका वेट यहाँ पर है अगर उसी वेट का ऑब्जेक्ट दूसरी तरफ हो जाता है तो ये आपका जो तराजू है ये बैलेंस हो जाता है। क्लियर, सो अब हम इसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो यहाँ पर आपका है 2 kg। ओके, हेयर इज 2 kg एंड यहाँ पे आपके छोटे छोटे बैलेंस दिए हैं, आप इनको यहाँ पे पुट करेंगे और इसको 2 kg करने की कोशिश करेंगे। चूज फ्रॉम द वेट अबव टू मेक द 2 pans इक्वल इन हाउ मैनी वेज यू कैन डू इट। ओके, सो हेयर यू हैव 2 kg एंड 1 kg 500 grams, 50, 250, 200, 100, 200, 250, 250 एंड 500। सो इन वेट्स को आपको यूज़ करके इसको इक्वल करना है और आपको ये भी बताना है कि कितने तरीक़ों से आप इसको इक्वल कर सकते हैं। सो बिफोर दैट जस्ट लुक एट हेयर वी हैव
kg, okay, and 1 kg is equals to 1000 ग्राम। 1 kg में कितने ग्राम्स होते हैं? 1000, एंड 1000 हम कैसे बना सकते हैं? 500 को ऐड करके हम 1000 बना सकते हैं। यस, एक 500 ग्राम और 250 और 250 को ऐड करके हम 1000 बना सकते हैं। यस, 500 प्लस 250 750 एंड 750 प्लस 250 दैट इज 1000, एंड 250 के 4 वेट को लेके भी हम 1000 बना सकते हैं। यस, डेफिनेटली 200 के 5 वेट्स को लेके हम 1000 बना सकते हैं। यस, डेफिनेटली। सो स्टूडेंट्स, इसी मैथमेटिक्स को यूज़ करके हमें बताना है कि कैसे हम 2 kg कंप्लीट कर सकते हैं। हाउ मैनी पॉसिबल वेज वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू 2 kg? लेट्स चेक। So here is your answer. 2 pans can be made equal by putting the weight show in the empty pan in many ways. Some of them are given below. 1 kg, 500 gram and 500 gram. Okay. So if you take 1 kg and 500 grams weight, so it is equals to 2 kg. 1 kg plus 500 and plus 500. So 500 plus 500 1 kg. ओके, ये दो 500 मिलके 1 kg हो जाएंगे, एंड 1 kg plus 1 kg दैट इज 2 kg. नेक्स्ट इज 1 kg 500 250 250. आप एक 1 kg का ले लीजिए, एक 500 का ले लीजिए, एंड 250 के ले लीजिए. सो 500 प्लस 250 दैट इज इक्वल्स टू 1000, एंड आपका 1 kg पहले से ही है. So here is your combination, 1 kg, 1 500 grams and 250 grams. Okay, so that is equals to 1 kg and that is your another 1 kg. So together it's 2 kg. Next one is 1 kg 500 grams, 200 grams, 200 grams and 100 grams. So 500 plus 200 700, 700 plus 200 900, 900 plus 100 that is 1000. So here is your combination, 1 kg, 1 500, 2 200s, okay, and 100. So together it's 2 kg. That's your another way. Next one is 1 kg 500, 1 250, 250. Okay, so 500 plus 250 that is 750, 750 plus 200 that is 950, and 950 plus 50 that is 1000. Clear? So it's another way, 1 kg plus 500 plus 250 plus 200 and 150. So together again it's 2 kg. Next is 500 plus 500, 500 के 2 ले लेंगे, सो ये हो जाएगा आपका 1 kg. नाउ 250 250 250 250 के 3 ले लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 750, एंड नेक्स्ट इज 200 एंड 50, सो टुगेदर इज 250. ओके, सो आपका दूसरा 1 kg हो जाएगा. Clear? So your next combination is here, 500 plus 500 1 kg, 250 plus 250 that is 500, and 200 plus 200 and 100 that is another 500. So here is your possible way, 500 plus 500 that is 1 kg, 250 250 500 and 250 750, and 200 plus 50 that is 1000. So together it's 2 kg. Okay, and our last combination is 500 plus 500 1 kg, 250 plus 250 500 grams, 200 plus 200 400, and plus 100 that is 500 grams. Okay, so together it's 2000. So here is your possible ways, 500 plus 500 and 250 plus 250 and 200 200 and 100. Okay, so that is equals to 2 kg again. So student, that is the answer of your question. Okay, pause the video and do it in your notebook. Okay, that is the another part of the same question, and remember that you have to mention your page number also before doing that question. Please just mention your page number. Okay, page number 105, and after that do it in your notebook. Okay, page number mention करने से आपको questions को find out करने में difficulty नहीं होगी. Now next question is here. In how many different ways can you balance this weight of 3/4 kg? आप कितने तरीक़ों से इसको बैलेंस कर सकते हैं? So first try to understand what is 3/4 of a kg. एक kg का 3/4 क्या होता है? So 1 kg is equals to 1000. So 3/4 of kg is 1000 divided by 4. So when you divide 1000 by 4, you will get 250, and 253 is 750. Clear? So students, here 3/4 kg means 750 grams. Clear?
So you have to find out the possible ways to make 750 grams. अब 750 grams को कैसे बना सकते हैं और कैसे इसको बैलेंस कर सकते हैं, आपको ये फाइंड आउट करना है. So here is your solution. Okay, so you can take two 500. So you can take one 500 and one 250 gram weight. Okay, आप एक 500 एक 250 का ले सकते हैं. Okay, another is one 500. Okay, वन 200 एंड 150 ग्राम. आप एक 500 का ले सकते हैं, एक 200 का ले सकते हैं, एक 50 का ले सकते हैं. टुगेदर ये आपके 750 होंगे. अनदर पॉसिबल वे इज़ 250 एंड 250 के 3 ले लीजिए. एंड अनदर पॉसिबल वेज आर 500 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 50. So take any 3 options and fill it here. Clear? Now come to the next topic, and that is your page number 106, and that is in your page number 106. So all of you please turn your page and just check what is your page number 106. Why is it wrong? ये गलत क्यों है? You have to check these 2 images and you have to find out that why these 2 images are wrong. Kana shared some parts as shown, but his friend Mini says that it is wrong. Explain why it's wrong. Okay. So Kana first क्या करते हैं, एक रेक्टेंगल बनाते हैं, उसे 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और कहते हैं कि इसका 1/4 शेडेड है. सेकंड एक्टिविटी में वो क्या करते हैं, वो एक ट्रायंगल बनाते हैं, उसका हाफ करते हैं और कहते हैं ये 1/2 पोर्शन है. बट जो उनकी फ्रेंड है मिनी, वो कहती हैं कि तुमने गलत किया है. सो वाई ही इज़ रॉन्ग, उन्होंने गलत क्यों किया है. सो स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी here you have 4 parts, but this shaded part is not equal to another part. बाकी के 3 parts तो इक्वल हैं, बट आपका shaded part इक्वल नहीं है. Okay, among these 4 parts, 1 part is not equal to other 3 parts. So how you can say that out of 4 1 is shaded? 4 parts equal होने चाहिए ना. Okay, so it's wrong. In second image same thing will happen. In second image same चीज़ आपकी हो रही है. 2 parts are there, but shaded part is less than unshaded part. Shaded part आपका less है, छोटा है unshaded part से. Clear? So आप ये नहीं कह सकते हैं कि हाफ पोर्शन शेडेड है जबकि दोनों पोर्शंस आपस में इक्वल हैं ही नहीं. Clear? So that's why Kana is wrong. Students, here you have practice time and you have to do all the questions in your notebook. Clear? So वीडियो में आपके हर प्लेस पे मेंशन है आपको कौन सा पार्ट बुक में करना है, कौन सा पार्ट नोटबुक में करना है. एंड जो भी पार्ट आप नोटबुक में करेंगे आप उसमें पेज नंबर भी मेंशन करेंगे. सो हेयर ऑल्सो यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक प्रैक्टिस टाइम पेज नंबर 106. आफ्टर दैट कंप्लीट योर वर्क इन योर नोटबुक. ओके. So in your practice time, first question is there are 60 mangoes, half of them are ripe. How many mangoes are ripe? आपके पास 60 mangoes हैं, उसमें से हाफ पके हुए हैं, तो कितने आम पके हुए हैं. Here is your answer. Half of 60 means 60 upon 2, so that is equals to 30. It means 30 mangoes जो हैं वो आपके पके हुए हैं. Number of ripe mangoes, that is equals to 30. Next question is here. There are 32 children. Half of them are girls. How many children are boys? आपके पास टोटल 32 बच्चे हैं, उसमें से हाफ गर्ल्स हैं, तो बॉयज़ कितने होंगे. Here is your answer. Total number of children 32. Number of girls, that is half of 32. It means 32 divided by 2, which is equals to 16. So 16 अगर गर्ल्स हैं, so 32 में से आप गर्ल्स को निकाल दीजिए, बॉयज़ बच जाएंगे. So number of boys is equals to 32 minus 16, which is also equals to 16. Clear? आपके हाफ गर्ल्स है तो ऑब्वियसली बात है हाफ बॉयज़ होंगे, सो जितनी गर्ल्स हैं उतने ही आपके बॉयज़ आ गए हैं. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर आर 20 स्टार्स, अ क्वार्टर ऑफ देम आर रेड. हाउ मैनी स्टार्स आर रेड, हाउ मैनी आर नॉट रेड. आपके पास टोटल 20 स्टार्स हैं, 20 में से आपके क्वार्टर जो हैं वो रेड स्टार्स हैं और बाकी बचे हुए जो स्टार्स हैं ओके वो रेड नहीं है. सो यू हैव टू फाइंड आउट दैट हाउ मैनी स्टार्स आर रेड एंड हाउ मैनी स्टार्स आर नॉट रेड. क्लियर. सो टोटल नंबर ऑफ स्टार्स 20. टोटल आपके पास 20 स्टार्स हैं, 20 स्टार्स हैं. नंबर ऑफ रेड स्टार्स इज इक्वल्स टू क्वार्टर ऑफ 20. 20 का क्वार्टर जो है वो रेड स्टार्स हैं. सो व्हाट इज क्वार्टर ऑफ 20? क्वार्टर मीन्स 1/4. सो क्वार्टर ऑफ 20 इज 2 5 20. सो 5 स्टार्स आपके क्या हैं, रेड हैं. अब टोटल 20 स्टार्स थे, 20 में से अगर आप 5 निकाल दें जो कि रेड हैं तो कौन से स्टार्स बचेंगे, जो रेड नहीं हैं. नंबर ऑफ नॉन रेड स्टार्स इक्वल्स टू 20 माइनस 5, दैट इज इक्वल्स टू 15. आपके पास 20 स्टार्स थे, उसमें से 5 रेड थे,
तो जो बचे हैं वो रेड नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रवि वॉन्ट्स अ पेंसिल, इट कॉस्ट ₹2। रवि एक पेंसिल लेना चाहते हैं जिसकी कॉस्ट ₹2 है। ही गिव ₹1 कॉइन, ₹1/2 कॉइन एंड ₹1/4 कॉइन। इट इज़ इनफ। सो रवि एक ₹2 की पेंसिल लेना चाहते हैं एंड वो शॉपकीपर को देते हैं एक ₹1 का कॉइन, एक ₹1/2 का कॉइन्स, इट मीन्स 50 पैसा, एंड एक ₹1/4 का कॉइन्स, इट मीन्स 25 पैसा। क्लियर। सो अब क्वेश्चन ये है कि क्या इतनी मनी इनफ है। सो जब आप इनको ऐड करेंगे सो आपका आएगा 1.75, इट मीन्स ₹1.75 एंड ₹2 में तो 200 पैसे होते हैं। क्लियर। सो इट मीन्स सिंस 2 इज मोर देन 1.75, ₹2 ज़्यादा है, ₹1.75 कम है, इट मीन्स उसके पास कम रुपए हैं। देयरफॉर मनी पेड इज़ नॉट इनफ, इट मीन्स उसने जितने पैसे दिए हैं वो इनफ नहीं है। अभी भी उन्हें 25 पैसे एक क्वार्टर की ज़रूरत है। क्लियर। सो दैट इज़ द आंसर ऑफ योर लास्ट क्वेश्चन। कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल इज ₹2, मनी पेड दैट इज 1.75। सिंस ₹2 इज मोर देन 1.75, देयरफॉर मनी पेड इज नॉट इनफ, जितने पैसे दिए गए हैं वो इनफ नहीं है। So students, that's your last practice time. It's your page number 106 and it's your last page of your chapter. So with the help of this video, one by one, complete your all pages. If you have any difficulty, any confusion, so comment me in the comment section. You can directly contact to me. Okay. So one by one, just complete your all work, your notebook work as well as your book work also. Clear? I hope this video is helpful to all of you. For any confusion, use your comment section. Thanks for watching this video. For proper understanding, watch it at least 2 times. Okay. Thanks for watching it. Have a nice day. Take care. Bye bye.